Hello students, in this video I am going to start new chapter number 8, National Movements 1919 to 1934. In this chapter we will study about the Gandhiji's struggle for the sake of motherland, that is India's freedom. Then how Gandhiji survived in South Africa. Second, non-cooperation movement, we will study reasons for the launch of this movement, Jallianwala Bagh tragedy, so many tragedy and repression, withdrawal and reaction of the government we will study. Third, civil disobedience movement 1930, we will study this movement also in this chapter. Second roundtable conference, first roundtable conference, why this movement launched, what was the activity of this movement, and then reaction of the government. And then most important, we will also study Gandhi-Irwin Pact and impact of the movement, कि इस movement का क्या असर पड़ता है इस national movement के लिए. So as the name suggests, national movement, it means कि all over India, मतलब पूरे इंडिया में ये movement हुआ. National movement, as the name suggests, it means that a movement which is followed by all the sections of the people, all the sections of the society, whether women, whether men, whether students, everyone took active participation in this movement. Firstly, we will learn about Mohandas Karamchand Gandhi, popularly known as Gandhiji. We also call him as Bapu. Started the Indian national movement during the period from 1919 to 1947, and therefore this period of the national movement we call as Gandhian era of Indian history. 1919 to 1947 गांधी जी ने स्ट्रगल किया, नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया, और इसीलिए इस नेशनल मूवमेंट को हम लोग गांधीयन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं. His epoch-making ideas were first brought together in his work, that is Hind Swaraj, in which the British rule was accused of causing devastation in traditional Indian society and harmonious rural economy. इनकी एक बुक है गांधी जी की हिंद स्वराज. इसमें इनकी आइडियाज़ को सबसे पहले देखा गया, जिसमें ब्रिटिश रूल को वो डिवास्टेशन का नाम दे रहे हैं कि ब्रिटिश रूल हमारे लिए एक बहुत बड़ा हानिकारक या डिवास्टेशन, बहुत ही डिवास्टिंग नेचर का है. ब्रिटिश रूल इकोनॉमी के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए बिल्कुल डिवास्टेशन है, मतलब बिल्कुल डेंजरस है ब्रिटिश रूल. इन्होंने अपने एक वर्क के थ्रू ये अपने आइडियाज़ को सामने रखा. द राइज ऑफ गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स. होम रूल एगिटेशन क्रिएटेड enthusiasm but achieved little, but his vacuum in Indian politics was compensated with the emergence of Gandhiji. He was born in a family of traders at Porbandar in Gujarat, 2nd October 1869. We all know. Gandhi in South Africa, he became a barrister. Now, how Gandhi suffered in South Africa, what was happened in South Africa with Gandhiji, we will learn. Gandhiji wanted to become a barrister, and he became a barrister. Barrister means lawyer. And set up practice in South Africa. South Africa में वो practice कर रहे थे from 1893 to 1914. In South Africa, on a journey by train from Durban to Pretoria, जब वो साउथ अफ्रीका में ट्रेन से जर्नी कर रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो उनको कंपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया, जबकि उनके पास वैलिड टिकट था. गांधी जी वॉज अपसेट, और तभी गांधी जी बहुत सैड हुए, अपसेट हुए इस रैशियल डिस्क्रिमिनेशन को देख के, and got involved in organizing agitation against this policy of apartheid of the South African government. और तभी से वो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की जो एपर्थेड पॉलिसी है इसके अगेंस्ट हो गए कि ये गलत है. इन साउथ अफ्रीका गांधी जी एक्सपेरिमेंटेड विद अ न्यू मेथड ऑफ एगिटेशन नेम्ड सत्याग्रह. सत्याग्रह से उन्होंने एगिटेशन किया है, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्होंने लड़ा है. अकॉर्डिंग टू हिम, अ पॉलिटिकल एगिटेटर वॉज अ सीकर ऑफ ट्रुथ हु अंडर नो सर्कमस्टांसेस वुड अडॉप्ट immoral methods. Gandhiji soon became the leader of the struggle for justice in South Africa. और साउथ अफ्रीका में इंसाफ के लिए गांधी जी एक लीडर बन गए. साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट अल्टीमेटली हैड टू रेपेल इन 1914 मोस्ट ऑफ द अनजस्ट एक्ट अगेंस्ट द इंडियंस. और तभी साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी वो
वो पीछे हटा देती है, मतलब रेपेल मीन्स पीछे लेना, बैक करना या स्टॉप करना। जो भी अनजस्ट एक्ट्स, जो गलत एक्ट्स हो रहे थे इंडियंस के अगेंस्ट, जो हो रहे थे वहाँ साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट वापस ले लेती है वो सारे एक्ट, क्योंकि गांधी जी यहाँ पे लीडर बन के जस्टिस के लिए इंडियंस के लिए लड़ रहे थे इन साउथ अफ्रीका। In 1915, Gandhiji returned to India and Gokhale advised him to travel throughout India. और गोखले ने उनको एडवाइस किया कि ज़रा इंडिया को भी एक बार देख लें। Between 1917 and 1918, he got associated with 3 significant local सत्याग्रहs in India। और तभी इन्होंने 3 लोकल सत्याग्रह कैंपेनिंग इंडिया में चलाई 1916 to 1918 के बीच में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 खेदा सत्याग्रह एंड इन 1918 अहमदाबाद सत्याग्रह। नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ऑल दीज सत्याग्रह। Champaran Satyagraha, this is the first satyagraha experimented by Gandhi ji and was held at Champaran in Bihar. He took up the cause indigo cultivators के साथ जो हो रहा था कि उनको फोर्स किया जा रहा था इंडिगो ग्रो करने के लिए and opium, because these are very expensive flowers and British government export these flowers to outside India. Then these peasants were also compelled to sell their indigo to the European planters at price fixed by the planters, and this system was known as तिनखातिया सिस्टम। तिनखातिया सिस्टम होता था इस तरीके से, जो पेजेंट्स ऑप्रेस्ड होके, फोर्स्ड होके गांधी जी को इनवाइट करते हैं कि हमें इस ऑपरेशन से बचाएं, हमें इस ज़बरदस्ती जो काम हो रहा है इससे बचाएं, क्योंकि हमारी लैंड की 320 पार्ट्स में फोर्स्ड किया जाता है फार्मर्स को कि वो इंडिगो प्लांट करें। गांधी जी टुक विथ हिम यंग मैन, गांधी जी ने अपने साथ लिया राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी एंड अदर्स। इन 1917 चंपारण एग्रीकल्चर बिल वॉज पास्ड। चंपारण एग्रीकल्चर बिल पास्ड हुआ एंड द लैंड रेवेन्यू रिड्यूस करती गई बाय 20 to 26%। अकॉर्डिंग टू जुडिथ ब्राउन, गांधी जी's experience helped him in his future plan of agitation against the British. Next is Kheda Satyagraha. Gandhi ji gave leadership to the peasants of Kheda districts in Gujarat as well, who had appealed to the government for remission of revenue demand, as the entire region was affected. अब पूरा रीजन जो था जहाँ पे कल्टिवेशन होता था वो ड्रॉट से अफेक्टेड हो गया था और डिजीज प्लेग फैल गया था, तो रेवेन्यू जो है, लैंड रेवेन्यू है, उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। इन 1918 गांधी जी along with वल्लभ भाई पटेल launched this खेदा सत्याग्रह and told the peasants not to pay the land revenue to the government. गवर्नमेंट को बिल्कुल भी लैंड रेवेन्यू नहीं देना है। एट लास्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ये अग्रीमेंट करती है गांधी जी के साथ और पेजेंट्स मूवमेंट इस तरीके से एंड हो जाता है। लास्ट सत्याग्रह वी विल स्टडी अहमदाबाद सत्याग्रह। In 1918, Gandhi ji intervened in a dispute between the mill owners and mill workers in Ahmedabad. अहमदाबाद में क्या होता है कि गांधी जी ने देखा कि mill owners और mill workers के बीच में dispute हो रहा था। The workers of the spinning mill of Ahmedabad demanded 50% hike in their wages. Okay, but the mill owners did not want to increase their wages more than 20%. 20% से ज़्यादा mill owners they were not ready to increase, है ना, and 50% they were demanding mill workers to increase their wages. Then Gandhi ji started a fast. तभी गांधी जी ने फास्ट रखा and on the 4th day of his fast the mill owners accepted his demand. और तभी mill owners ने accept कर लिया कि ठीक है 50% हाइक कर देंगे वेजेस में। इन इंडिया दिस was the first सत्याग्रह विथ फास्ट। ये पहला सत्याग्रह था। यस चिल्ड्रेन, अहमदाबाद सत्याग्रह फर्स्ट सत्याग्रह था जिसमें इन गांधी जी ने फास्ट लिया था। The mill workers' wage was increased to 35%. तो एनी हाउ मिल वर्कर्स की वेज इंक्रीज हो जाती है 35% तक। दस गांधी जी ने इस तरीके से सपोर्ट किया वर्कर्स को ताकि वर्कर्स उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में आ गए और ही गॉट अ फुटिंग इन द अर्बन एरियाज, और इस तरीके से वो अर्बन एरियाज में भी गए। नेक्स्ट टॉपिक इज द गांधीयन पाथ। गांधीयन पाथ मतलब गांधी जी के पथ, मतलब कि गांधी जी के पथ पे चलना, रास्ता। गांधी जी क्या फॉलो कर रहे थे? फर्स्ट इज सत्याग्रह। सत्य मीन्स ट्रुथ, आग्रह मीन्स एफर्ट ऑफ फोर्स। सच के लिए लड़ना, सच के रास्ते पे चलना, सच के लिए खोज करना और सच के लिए लड़ना। Satyagrahis try to transform the evil doers so that they can accept suffering cheerfully.
fasting, non-cooperation with the evil-doers and civil disobedience of the state laws are different manifestation of सत्याग्रह। मतलब लड़ाई करके सच को नहीं हासिल करना है, फास्टिंग करके, नॉन कोऑपरेशन करके इस तरीके से करना है। गांधी जी रिमार्क दैट सत्याग्रह मेंट अ स्पिरिचुअल एंड अ मॉरल फोर्स। सत्याग्रह एक स्पिरिचुअल, एक मॉरल फोर्स है जो अपनी आत्मा हमें समर्पित करनी पड़ती है। अंदर से हमें आवाज आती है कि हम सही के लिए लड़ रहे हैं। एक फोर्स है जो फोर्स ऑफ द सोल जिसको कहते हैं। सत्याग्रह डज नॉट डिपेंड ऑन आउटसाइड हेल्प। सत्याग्रह में एक चीज है कि हम बाहर के से लोगों की हेल्प के लिए डिपेंड नहीं रहेंगे। इट डिराइव्स ऑल द स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन। सत्याग्रह का मतलब होता है कि हमें अंदर से, अपने अंदर से हमें स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है कि हम सच के लिए लड़ें, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। नेक्स्ट, नॉन वायलेंस। सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस आर क्लोजली रिलेटेड। वाई? क्योंकि सत्याग्रह हम सच के लिए लड़ रहे हैं, हमें किसी को हार्म नहीं करना है, हमें वायलेंस नहीं करना है, मतलब मारना नहीं है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। नॉन वायलेंस मीन्स नॉट टू अप्लाई फिजिकल फोर्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। किसी भी हाल में हमें किसी को भी कोई भी तरीके से हार्म नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, नॉन वायलेंस इज नॉट अ नेगेटिव। गांधी जी के अकॉर्डिंगली नॉन वायलेंस एक नेगेटिव नहीं, एक पॉजिटिव फोर्स होती है कि हमें धीमे से, प्यार से और पेशेंस रखे हमें ब्रेवली, स्ट्रांगली हमें अपनी बात मनवानी है। इट इज़ अ वेपन ऑफ द ब्रेव एंड स्ट्रांग। और जो ब्रेव होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, वो लड़ाई करके नहीं, मार धाड़ करके नहीं, बल्कि अपनी बातों से और अपने काम से उस सामने वाले से अपना काम करवा लेते हैं। स्वदेशी। द टर्म स्वदेशी मीन्स टू यूज द इंडिजीनियस गुड्स। इंडियन गुड्स यूज करें, मीन्स द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। गांधी जी बिलीव दैट द यूज ऑफ स्वदेशी गुड्स वुड मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंस। ऑब्वियसली जैसे अभी फिर होने लगा है कि अब हम लोगों को लोकल इज वोकल, है ना, तो लोकल गुड्स यूज करना चाहिए, इंडियन यूज गुड्स यूज करना चाहिए, फॉरेन गुड्स नहीं यूज करना चाहिए, सो दैट इंडिया विल बी मोर self-reliance and self-dependent. Gandhi ji emphasized on manual work and the use of charkha and khadi. He said that the hand-spun cloth could provide employment to many jobless Indians. तो गांधी जी ने यहाँ पे emphasize किया है हाथ के बने कपड़ों के लिए, और चरखा और खादी का यूज ज़्यादा करें और कई जॉबलेस इंडियंस को इस तरीके से काम भी मिल जाएगा। दिस इज अ पिक्चर ऑफ यंग फाइटर गांधी जी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज सोशल जस्टिस। गांधी जी ऑपोज्ड अनटचेबिलिटी। जो उनके साथ साउथ अफ्रीका में हो चुका है डिस्क्रिमिनेशन, वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते अनटचेबिलिटी को। गांधी जी वॉज स्ट्रिक्टली ऑपोज्ड अनटचेबिलिटी। ही फॉट अगेंस्ट कम्युनलिज्म, ही फेवर्ड द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न फॉर द ऑप्रेस्ड क्लास। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन्स, मीनिंग द सन ऑफ गॉड। उन्होंने कहा है कि ये जो अनटचेबल्स हैं, ये जो हरिजन्स हैं, ये भगवान के ही बच्चे हैं, ये गॉड के ही सन हैं, ये हमारी और आपकी तरह ही बराबर हैं। तो ही बिलीव्ड so in social justice. In the next video, I'll discuss the non-cooperation movement. Thank you.